جس قوم کے نوجوان لکھی پڑھی وہ قوم لکھی پڑھی شمار ہوتی ہے، جس قوم کے نوجوان آگے ہیں، ترقی یافتہ ہیں، وہ قوم ترقی یافتہ شمار کی جاتی ہے۔ وہ جس قوم کے نوجوان اخلاق میں، عادات میں، اطوار میں اچھے ہیں، اس قوم کو اخلاق، عادات اور اطوار میں اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ نوجوان تمہیں پہچان ہو، تمہیں شناخت ہو، تمہیں آئیڈینٹیفیکیشن ہو، یاد رکھیے آپ کے ہاتھ میں ہے یہ کہ آپ اپنی قوم کے لیے کیا پہچان دیتے ہو، آپ اپنی قوم کے لیے کیا شناخت اور آئیڈینٹیفیکیشن دیتے ہو۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اس نفس کو سوار لیا کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کی ہر بات سن لی ناکام و نامراد ہو گیا۔ پتہ کی ایک بات یاد رکھنا، اگر آخرت میں من چاہی، رب شاہی زندگی چاہیے تو دنیا میں منمانی نفسانی زندگی کو چھوڑو۔ دنیا میں اگر تم نے رب شاہی زندگی گزاری ہے وہاں پر من چاہی زندگی ملے گی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ آخرت میں جنت میں من چاہی زندگی چاہیے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ منمانی زندگی، من چاہی چیزیں اگر ملنی ہے، یاد رکھو میرے بھائیو، یہاں پر منمانی زندگی نہیں، نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں، رب شاہی زندگی گزارو، اس نفس کو کنٹرول کیا کرو۔ حاضرین، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتے یہ خیر محض ہیں، شیطان کو پیدا کیا وہ شر محض ہے، اور انسان کے پاس خیر اور شر دونوں کا مادہ ہے، اور یہی ہماری آزمائش ہے، یہی ہماری آزمائش ہے کہ ہم نے اس نفس کو، نفس امارہ کو فائٹ کر کے، اس کو کچل کے اور اس کو صحیح راستے پہ لا کے اگر ہم نے اس کو کامیاب کر دیا، قد افلح من زکاہا، موت کے وقت میں فرشتے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہماری زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم کو نفس امارہ سے فائٹ کرنا ہے، وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے، غلط راہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اس نفس کو تم سمجھاؤ، مناؤ، بجھاؤ، کہو کہ نہیں اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کی بات ہے، اس پہ آپ چلو، ڈٹے رہو اور جمے رہو، اور نفس کو سمجھاؤ، اس کی باتوں کو مت مانا کرو۔ یاد رکھو اگر تم نے یہ کر دیا، اگر نفس کو تم نے مطمئنہ بنا دیا تو موت کے وقت میں تم کامیاب، فرشتے کہیں گے اے مطمئن نفس آ جا، نیک لوگوں میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا، تو بھی راضی، تیرا رب بھی راضی ہے۔ اللہ کرے آمین۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ دور دراز سے تشریف لائے ہوئے محترم و معزز سامعین، بزرگان، نوجوانان اور پردے میں تشریف فرما خواتین ملت، میں ایک اثر سے، اور اگر اس کو اصول حدیث کی گہرائی اور گہرائیت کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ حدیث بھی ہے۔ امام بیہقی نے اس کو ذکر کیا اور محدثین نے کہا کہ رجالہ ثقات، اس کے تمام رجال ثقات ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جب نوجوانوں کو دیکھتے کہ وہ علوم شرعیہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ان کو مرحبا کہتے، مرحبا کہتے، اور کہتے کہ یہ وصیت رسول اللہ ہے۔ تو اگر راوی رسول کی طرف کوئی حوالہ دے تو حدیث مرفوع کے حکم میں ہے، اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تمہارے لیے مجلسوں میں استاد پیدا کی جائے، تو مجلسوں میں استاد پیدا کریں، آپ مجلسوں کو بنائیں ماشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ کہ تمہیں شرعی علوم سکھائیں، حدیث سکھائیں، قرآن سکھائیں، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، کیونکہ فَإِنَّكُمْ خَلُوفُنَا وَأَحْلُ الْحَدِيثِ بَعْدَنَا۔ یہ جملہ یاد رکھو، فَإِنَّكُمْ خَلُوفُنَا، اس لیے کہ تم ہمارے بعد بہترین جانشین ہو،
बेहतरीन खल्फ व खलफ हो और साथ ही साथ तुम अहले हदीस हो। मैं आपको भी ये वसीयत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि आप खुसूसी तौर पर ये नौजवान और नौजवानों को यहाँ तक पहुँचाने वाले, उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करने वाले ये जो बुजुर्गान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब इसके लिए मिस्दाक हैं। अल्लाह करे आमीन। हाज़रीन, नौजवान नस्ल किसी भी कौम की शनाख्त, पहचान, आइडेंटिफिकेशन है। इस जुमले को याद रखिए, क्या है? नौजवान किसी भी कौम, किसी भी समाज के लिए शनाख्त और पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। जिस कौम के नौजवान लिखी पढ़ी वो कौम लिखी पढ़ी शुमार होती है। जिस कौम के नौजवान आगे हैं, तरक्की याफ्ता हैं, वो कौम तरक्की याफ्ता शुमार की जाती है। वो जिस कौम के नौजवान अखलाक में, आदात में, अतवार में अच्छे हैं, उस कौम को अखलाक, आदात और अतवार में अच्छा तसव्वुर किया जाता है। नौजवान तुम्ही पहचान हो, तुम्ही शनाख्त हो, तुम्ही आइडेंटिफिकेशन हो। याद रखिए, आपके हाथ में है ये कि आप अपनी कौम के लिए क्या पहचान देते हो, आप अपनी कौम के लिए क्या शनाख्त और आइडेंटिफिकेशन देते हो। हज़रात गिरामी, आज पूरी उम्मत की नजर है आप पर। ये प्रोग्राम जो सजाया गया, महफिल जो मुनाकिद की गई है, ये आपके लिए है। ये एहसास है, ये तड़प है, ये जज्बा है, ये फिक्र है कि आप सही हो जाए तो आप फ्यूचर हैं, आप मुस्तकबिल हैं, आप हाल भी हैं, आप प्रेजेंट भी हो, आप फ्यूचर भी हो, आप शनाख्त भी हो, आप पहचान भी हो। तो आपके लिए ये महफिलें सजाई गई हैं और सजाना चाहिए, क्योंकि याद रखिए आपकी इस्लाह सारी कौम की इस्लाह है और फ्यूचर की इस्लाह है। हाज़रीन गिरामी, उन्वान जो मुझे दिया गया, आपने सुना कि नौजवान और ख्वाहिशात नफसानी, दो जुज हैं, नौजवान और ख्वाहिशात नफसानी। नौजवान के औसाफ के ताल्लुक से आपने साबिक मुकर्रिर से समाअत किया है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं चाहूँगा। ताहम मौजू का हक अदा करने के लिए नौजवान किसको कहा जाता है ये पहले सुन ले। इब्ने कसीर ने सूरह अहकाफ की आयत नंबर 15 यानी इस आयत के हवाले से बयान किया है। आयत यह है, अल्लाह ताला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हत्ता इज़ा बलगा अशुद्दह व बलगा 40 सना। इस आयत की तफसीर में इब्ने कसीर बयान करते हैं, वल अस्लुल लुग़वी लिकलिमति शबाब यदुल्लु अला अमरैन। कलिमा शबाब लुग़वी असल के एतबार से दो बातों पर दलालत करता है, अन्नमा वल कुव्वा, एक है नुमू, बढ़ोतरी, इजाफा, और ताकत और कुव्वत। ताकत और कुव्वत के माने में है। इसकी तफसीलात में मैं जाना नहीं चाहता हूं, बहुत तफसीलात इसके लिए हैं। तो याद रखिए आपके अंदर ये शबाब, और ये कब तक के लिए शबाब कहा जाता है? आयत में खुद अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया, व बलगा 40 सना, 40 साल। याद रखो 40 साल तक आपको नौजवान ही कहा जाएगा। 40 साल के बाद की जो उम्र होती है वो कुहूलत है, अधेरपन है। उसके बाद देखा जाए तो 50 के बाद बुढ़ापे का मरहला आता है। अहले इल्म ने लिखा है कि ये जो फतरा है, ये जो वक्त है, याद रखिए ये सबसे अतवल मराहिल हयात, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मरहला कौन सा है? जवानी का मरहला है। जवानी का मरहला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मरहला है। याद रखिए ये 15 साल से लेकर 40 साल का मरहला सबसे तवील मरहला है। फतरतुल कुव्वा वल इंताज, ये ताकत और कुव्वत और नुमो का ये जज्बा होता है, और पैदावार, प्रोडक्शन का ये जमाना होता है। इस वक्त वलवला होता है, जोश होती है, कुछ कर गुजरने का ख्याल होता है। याद रखिए मेरे भाइयों, ये सबसे अफजल वक्त
ہوتا ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. یاد رکھیں میرے بھائیو، اسی لیے یہ شباب جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یاد رکھیں میرے بھائیو، قرآن نے بارہا ان کا تذکرہ کیا. ابھی آپ نے سنا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا قالوا سمعنا فتى، ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے، یذکرہم، ان ہمارے معبودان کے بارے میں بیان کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، یقال لہ ابراہیم، جن کو ابراہیم کہا جاتا ہے. اور وہ نوجوان جن کی طرف ضمیر شان سے ان کی شان بان آن کو اللہ نے بیان کیا ہے، انہم فتیہ، انہم فتیہ، یہ عربی تعبیر ہے، یاد رکھو، انہم فتیہ، وہ چند نوجوان ہی تھے، ان کو یاد کرو کیا ولولہ تھا، کیا جوش اور کیا خروش، کیا طاقت، کیا قوت. یاد رکھیے یہ جوانی ہے کہ وقت کے بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ہدایت اور ایمان سے سرشار وقت کے ظالم و جابر بادشاہ سے کہا تو رب نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھیں میرے بھائیو، یہ طاقت اور قوت جب آپ کے پاس آ جائیں، جوانی کے ساتھ ایمان، عقیدہ اور منہج، یاد رکھو فرعون کا دربار ہے اور وہ جادوگر جو آئے ہوئے تھے ایمان سے پہلے، عقیدہ اور منہج سے پہلے کمزور تھے، چاپلوسی تھی، وہ بھی عزت فرعون کہا، لیکن وہی دربار فرعون ہے، وہی فرعون ہے، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ایمان کے بعد، عقیدہ توحید کے بعد، علم کے بعد کہا فقض ما انت قاض، کیا کر لینا ہے کر لے. اگر ترجمہ صحیح کیا جائے کیا کر لینا ہے کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں جان لے لے گا، لے لے، لیکن یاد رکھ تو ہمیں جھکا نہیں سکتا ہے. یاد رکھیں میرے بھائی، جو یہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے، اسی لیے کل قیامت کے میدان میں دیکھیے آپ سے جب 5 یا 6 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا تو ان میں ان عمری ہے نا، عمر کے بارے میں ہے. عمر میں جوانی داخل ہے کہ نہیں ہے؟ عمر میں جوانی داخل ہے. اس کے باوجود الگ سے ان شبابی فیما ابلا، جوانی کے تعلق سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا ہے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے. اللہ کی نگاہ میں جوانوں کی عبادت بہت اہم ہے. شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی بیرا روی میں نہیں، گلی کوچوں میں نہیں، ڈرگس میں نہیں، عشق مشق کے فائدے اور عشق کے چکر میں نہیں، اور کسی کے پیچھے نہیں، چوری ڈکیتی میں نہیں، عریانی اور بے حیائی میں نہیں، غلط کاموں میں نہیں، بلکہ شاب نشا فی عبادت اللہ، نوجوانی کو اپنے جوانی کو اس نے اللہ کی عبادت میں گزارا ہے. سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہاں، سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہاں، زندگی اگر کچھ رہی تو یہ جوانی پھر کہاں. یاد رکھیں میرے بھائیو، مسلمان نوجوانوں کو چاہیے کہ ان باتوں کا خیال رکھے. میرے موضوع کا دوسرا پہلو ہے خواہشات نفسانی، اور یہ اصل اور اہم پہلو ہے. اللہ کرے وقت میں برکت ہو اور میں آپ کے سامنے پوری بات رکھ سکوں. حضرین گرامی، میں نے خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ شمس کی جو آیتیں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. نفس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، نفس کی حفاظت کرو، بہت اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ محتم بالشان کی قسم کھاتا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور جس ذات نے اس کو سنوارا ہے. فَأَلْهَمَهَا فجورها وتقواها، اس نفس میں اللہ تعالیٰ نے فسق و فجور کی بھی باتیں رکھی ہیں، تقوی کی بھی باتیں رکھی ہیں. قد افلح من زکاها، جس نے اس نفس کو سوار لیا کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساها، جس نے نفس کی ہر بات سن لی ناکام و نامراد ہو گیا. پتہ کی ایک بات یاد رکھنا، اگر آخرت میں من چاہی رب شاہی زندگی چاہیے تو دنیا میں منمانی نفسانی زندگی کو چھوڑو. دنیا میں اگر تم نے رب شاہی زندگی گزاری ہے،
वहां पर मनचाही जिंदगी मिलेगी। क्या चाहिए आपको? आखिरत में जन्नत में मनचाही जिंदगी चाहिए। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दाउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। मनमानी जिंदगी, मनचाही चीजें अगर मिलनी है, याद रखो मेरे भाइयों, यहां पर मनमानी जिंदगी नहीं, नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, रब शाही जिंदगी गुजारो। इस नफ्स को कंट्रोल किया करो। हज़रीन, अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया, फरिश्ते ये खैर महज हैं। शैतान को पैदा किया, वो शर्र महज है। और इंसान के पास खैर और शर दोनों का मादा है। और यही हमारी आजमाइश है, यही हमारी आजमाइश है कि हमने इस नफ्स को, नफ्स अम्मारा को फाइट करके, उसको कुचल के और उसको सही रास्ते पे ला के अगर हमने इसको कामयाब कर दिया, कद अफलह मन ज़क्काहा, मौत के वक्त में फरिश्ते कहेंगे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हमारी जिंदगी का खुलासा यही है कि हमको नफ्स अम्मारा से फाइट करना है। वो नफ्स जो बुराई का हुक्म देता है, गलत राहों की तरफ लेके जाता है, उस नफ्स को तुम समझाओ, मनाओ, बुझाओ, कहो कि नहीं अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह की बात है, उस पे आप चलो, डटे रहो और जमे रहो और नफ्स को समझाओ, उसकी बातों को मत माना करो। याद रखो, अगर तुमने ये कर दिया, अगर नफ्स को तुमने मुतमइन्ना बना दिया, तो मौत के वक्त में तुम कामयाब फरिश्ते कहेंगे आई मुतमइन नफ्स, आ जा, नेक लोगों में दाखिल हो जा, जन्नत में दाखिल हो जा, तू भी राजी, तेरा रब भी राजी है। अल्लाह करे आमीन। ये पैगाम है मेरे भाइयों, खुलासे कलाम ही है कि नफ्स की ख्वाहिशात को हलाल रुख दो। इस्लाम ये नहीं कहता है कि भाई नफ्सानी ख्वाहिशात को कुछ अदा ही नहीं करना, उसका हक ही नहीं देना, ऐसा नहीं कहता इस्लाम। इस्लाम ये कहता है उसको जायज रुख दो। हाँ, अल्लाह ने सूरह आल इमरान में फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। कहा कि देखो, अल्लाह ने कहा ज़ुय्यिना लिन्नास, लोग, इंसान चाहे मर्द हो कि ख़वातीन हो, सबके पास शहवात, नफसानी शहवात, ख्वाहिशात तो हैं। मिनन निसा वल बनीन, यानी मर्द के लिए औरत, औरत के लिए मर्द की मोहब्बत है, औलाद चाहिए। कनातिर मुकंतरा, आल औलाद, माल दौलत, इनकी फरावानी चाहिए, सोना चांदी और रुपया पैसा, जायदाद, औलाद, अमलाक, सब कुछ चाहिए है। बेहतरीन गाड़ी बंगला चाहिए, घोड़े, निशानज़दा घोड़े, और इसी तरह से बेहतरीन चौपाई अगर कहेंगे, लेकिन आज के जमाने में हर तरह के आपको साजो सामान चाहिए। अल्लाह ने कहा ये वदियत हमने कर दी है, ज़िक्ना है, हर इंसान के अंदर है, लेकिन कंट्रोल करो हलाल रास्ते से। हाँ, इस्लाम ये कहता है कि हलाल रुख दिया करो। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये दुनियावी जिंदगी का मता है, लेकिन याद रखो अल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। अगर तुमको आखिरत की जिंदगी चाहिए, जहां जाके कभी वापस नहीं आना है, दुनिया में जहां आकर कभी रहना नहीं, हमेशा रहना नहीं है, यहां से आपको जाना पड़ेगा और जाके वहां से वापस नहीं आना है, वो हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार हो जाओ। मौत जिंदगी के खातिमे का नाम नहीं है, मौत से हमेशा की जिंदगी शुरू हो जाती है ना। इसीलिए याद रखिए, परेशान होकर घबरा के खुदकुशी कर लेते, समझते हैं कि मसले का हल है। खुदकुशी मसले का हल नहीं है, हमेशा के लिए आपने मसाइल को दावत दे दी है। आज तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, आज तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आए तो किधर जाओगे भाई। हाँ, याद रखिए, इसलिए हमें चाहिए कि उस आखिरत अल्लाह इंदहु हुस्नुल मआब। अब आइए, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब इग़ाज़तुल लहफ़ान फ़ी मकाइद शैतान में बयान किया है कि तमाम फितनों के जड़ दो हैं, तमाम फितनों के जड़ दो हैं, फितनतुश शहवात, फितनतुश शुबहात। खत्म। अब जितने मौज़ूआत आप सुनेंगे सब इन्हीं के इर्द गिर्द है, इन्हीं के इर्द गिर्द है।
नौजवान और ख्वाहिशात नफसानी, नौजवान शुबहात, उनके औसाफ जो भी है याद रखिए। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने जो बयान कर दिया बहुत पते की बात है। सारे फितने, सारी बातें इन्हीं दो के अंदर है, फितनतुश शहवात, फितनतुश शुबहात। फितनतुश शुबहात इंशाअल्लाह उस टॉपिक है, मौजू है, आप सुनेंगे। मेरा टॉपिक है शहवात। आइए इस ताल्लुक से मैं आपके सामने सिर्फ 3 बातें अर्ज करना चाहूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह बात खत्म कर दूंगा। फितनतुश शहवात और शुबहात, याद रखिए इन दोनों को जो कंट्रोल कर लिया वही कामयाब। और दोनों को अल्लाह तबारक तआला ने एक ही आयत में बयान फरमाया। का इस्तिदलाल अल्लामा इब्न क़य्यिम ने फिर इस आयत से इस्तिदलाल किया है, सूरह सजदा आयत नंबर 24। जुमा के रोज फजर की नमाज में पहली रकात में पढ़ना मसनून है सूरह सजदा। अल्लाह ने फरमाया वजअलना मिनहुम अइम्मा वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून। दोनों का हल है। पहला फितना फितनतुश शहवात, दूसरा फितनतुश शुबहात। शहवत उसको खत्म करने के लिए क्या करना है? कंट्रोल, है ना, सेल्फ कंट्रोल, उसको कहते हैं सबर। सबर सबर करोगे, कंट्रोल करोगे, शहवात से बच जाओगे। शुबहात के फितने से बचना है। शुबहात की जिद क्या है? शक और शुबे की जिद क्या है? बोले यकीन, है ना। यकीन, यकीन आने से शक खत्म हो जाता है। यकीन कब आएगा? इल्म के बाद यकीन आता है। हाँ, इल्म के बाद यकीन आता है। इसीलिए कहा कि देखो वजालना मिनहुम अइम्मा, हमने उनमें अइम्मा बनाए हैं। कब अइम्मा बनाए? यहदूना बिअमरिना, जो हिदायत याफ्ता हुए हमारी मर्जी से और तौफीक से, हमारे हुक्म से। लम्मा सबरू, सबर किए। आप नौजवानों याद रखो, अगर आप लीडर बनना चाहते, कायद बनना चाहते हैं, सबसे पहले सबर करो। शहवात को कंट्रोल किया करो, नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करो। सबर सबर सबर। लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून, और वह हमारी आयतों पर यकीन रखते हैं। यकीन के बाद, इल्म के बाद यकीन आता है, और यकीन आ जाए तो शुकूक शुबात खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह। याद रखिए मेरे भाइयों, ये सारे के सारा खुलासा है। अब आइए मैं आपके सामने इन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ता हूं। और वो जो सूरा इमाम शाफी ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला इस सूरा को नाजिल करता और सारा कुरान नाजिल ना करता तो दलील और हुज्जत के लिए काफी हो जाती थी ये सूरा, सूरतुल असर। अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर। जमाने की कसम, हर जमाने में इंसान नुकसान में रहेंगे। आदम से लेकर ईदम तक, कयामत की सुबह तक, हर जमाने में इंसान लॉस में रहेंगे, घाटे में रहेंगे। लॉस से, घाटे से बचना चाहते हो, 4 काम कर लिया करो। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, वो ईमान, अकीदा और मनहज ईमान याद रखिए। व अमिलुस्सालिहात, और नेक अमल करो। नेक अमल के लिए पहले इल्म हासिल करना, यकीन आना चाहिए। और जो हक आपने मालूम किया है, व तवासौ बिल हक़, उसकी तलकीन करो, उसको बताओ दूसरों को। और ये कोई फूलों का रास्ता नहीं है, इन पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। सबर करना पड़ेगा इस रास्ते में, सबर आपको करना पड़ेगा। ये आग का दरिया है, डूब के पार करना पड़ेगा। याद रखिए, दावत तबलीग के मैदान में सबर करना है, बहुत जरूरी है। सबर करोगे अल्लाह तुम्हें इमाम बनाएगा, और इमाम अगर सबर ना करे वो इमाम नहीं बन सकता। याद रखो, चाहे मस्जिद के इमाम हो, कौम के इमाम हो, बहुत जरूरी है कि आप सबर 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 करें, तभी जाकर कामयाब हो सकते हैं। मुझे बातें बहुत याद आ रही है, मेरे पास वक्त नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल के महफिल में एक नौजवान आता है और आकर कहता कि इमाम साहब, मैं आपकी माँ से निकाह करना चाहता हूँ। बहुत मशहूर वाक़या है। मैं क्या क्या बातें आपके सामने रखूँ, मैं तो अपने मौजू पे आया ही नहीं, अभी मतलब आ रहा हूँ जो आपको नफसानी ख्वाहिशात नफसानी बताना है। बहरहाल, और बार बार वो रिपीट कर रहा था, लेकिन इमाम साहब इतने सब्र और तहम्मुल के साथ जवाब दिया तो वहां बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, ये आदमी हक रखते हैं कि इनको इमाम बनाया जाए। सबर बहुत जरूरी है, याद रखो, सबर से कामयाब हो सकते हो। आइए मेरे भाइयों, ये सबर और खासतौर से नफ्स को कंट्रोल करने के लिए, नफ्स से ख्वाहिशात और अरमान बहुत हैं। 1000 ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। उनमें से याद रखिए, अरबी में कहा जाता है आदा अदुव्विका बैन जंबैक, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरे पहलू में है। ये नफ्स
बड़ा दुश्मन भी है, और यही हमें सही रास्ते की तरफ ले भी जाएगा। इसीलिए इससे आप फाइट करो। नहंगो अजदहा शेर नर को मारा तो क्या मारा, नहंगो अजदहा शेर नर को मारा तो क्या मारा, नफ्से अम्मारा को मारा, बड़े मूजी को मारा। नफ्से अम्मारा से आपने फाइट किया। इसीलिए नबी हर खुतबे में मिन शुरूरी अनफुसिना और नफ्स के शर से पनाह मांगा करते थे। हाज़रीन, ये जो ख्वाहिशात नफसानी है ना, पहली बात याद रखिए, दीन बेजारी और दीन के नाम पर गुमराही, ये बहुत दूर तक बात जा सकती है। इसको बताएं तो शुकूक व शुबहात इंशाल्लाह मशाइख बताएंगे। दीन बेजारी, एक तो दीन बेजारी, और कुछ लोगों के पास दीन का जज्बा है मगर दीन के नाम पे गुमराही, जो चाहे बोले, हर चीज का जवाब दे और गलत सलत बातों की तरफ लेकर जाएं। मैं इन सारी बातों को अल्लामा इकबाल के चंद अशार के हवाले से आपके सामने बताना चाहता हूं। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागिर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। शमशीर यानी तलवार। नौजवानों को पता नहीं जिहाद की सिर्फ फजीलत पता है, शराइत क्या है, अहकाम क्या, मसाइल क्या, कब कर, कुछ पता नहीं, उठे और जिहाद की बात करते हैं। नबी ने कहा कि जहां पर अजान की आवाज आए, एक दो मुसलमान है, वहां हमला नहीं करना है। इंडिया में इतनी बड़ी आबादी मुसलमान की है, जिहाद की बात करते हो, फसाद है, फसाद है। याद रखिए, ना हक के लिए उठे को तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। हाँ, नारे तकबीर भी आप अगर गलत तरीके में दे रहे हैं, जहां नहीं कहना वहां कह रहे हैं, दीन की बात की गलत तावील और तफसीर कर रहे हैं, ये भी फितना है मेरे भाइयों। इसीलिए दीनदार बने और दीनी इल्म दीनी उलामा से लिया करें। याद रखिए मेरे भाइयों, सरसरी तौर पर 2-4 मिनट में खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात, इश्क व मोहब्बत और नफसानी ख्वाहिशात में ये ज्यादा मतलूब है, यही असल टॉपिक है। इश्क मोहब्बत और जिनसी शहवत का फितना, इश्क मोहब्बत और जिनसी शहवत का फितना, चूंकि नौजवानी में ये ज्यादा इसका गलबा होता है, शाहवानी कैफियत ज्यादा होती है, शहवत ज्यादा होती है, और अभी उनके पास मियाँ बीवी नहीं है, शौहर नहीं है। दोनों को मैं पैगाम दे रहा हूं, नौजवान लड़का नौजवान लड़की दोनों के लिए, याद रखिए, इनको कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। आमतौर से क्या कहते हैं लोग, नौजवान, मोहब्बत एक पाकीज़ा जज्बा है, मोहब्बत की गलत क्या किए है, लव मैरिज कोई गलत है क्या? अब आइए मैं आपको इसी चीज को नबी की हदीस के जरिए समझाता हूं। इस्लाम का तरीका यह है, लव देन मैरिज नहीं, मैरिज देन लव। बस समझ आ रही है? लव देन मैरिज नहीं, मैरिज देन लव। शादी करो और मोहब्बत बीबी से जम के करो। शादी से पहले दूसरों की बहन बेटी जो खर्चा कोई और कर रहा है और तुम इश्क लड़ा रहे हो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन याद रखो, अब मैं आपको, नबी के सामने एक नौजवान आए, है ना, वो सही रिवायत है तबरानी और इसी तरह से मुसनद अहमद की, कहा कि अल्लाह के रसूल इज़्ज़न ली बिज़िना, मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। उसके बाद नबी ने कहा कि अच्छा ठीक है, इधर आओ, करीब आ जाओ, उदनो, करीब आ जाओ। कहा कि तुम इसको पसंद करोगे तुम्हारी माँ के लिए, कोई तुम्हारी माँ के साथ जिना करे? उससे में आ गए, हाँ क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारी बहन के साथ जिना करे, तुम्हारी बेटी के साथ जिना करे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहा कि तुम भी जिसके साथ जिना करोगे वो भी तो किसी की बहन बेटी या किसी की बहन होगी, माँ होगी, किसी की बीवी होगी। तुम जैसे तुमको ग़ैरत आ रही, उनको भी तो ग़ैरत आएगी। याद रखिए मेरे भाई, इस बात को समझिए, इस्लाम एक फितरी मजहब है और फितरत का ये तकाजा है, फितरत की ये डिमांड है कि आप फितरत के मुताबिक चले। आप एक नौजवान हो, आपको पता चले कि आपकी बहन के नौजवान के साथ इश्क लड़ाती है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, आपको गुस्सा आएगा कि खुशी होगी? गुस्सा आएगा ना। तो आप जिसके साथ मोहब्बत करेंगे उससे तो किसी की बहन होगी ना। यही बात देखो, शादी के बाद पता चला बहन बहन भाई दोनों बहुत खुशखुर्रम है, बहुत खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हुआ, अच्छा जोड़ा मिला। क्यों? शादी के बाद मैरिज देन लव ये फितरी है, और मैरिज से पहले आपको गुस्सा आ रहा है, मैरिज के बाद गुस्सा नहीं आ रहा है। याद रखिए, लड़कियां आज बेहयाई बेहिजाबी का ये जमाना है, दौर है,
याद रखिए इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे काम के, इश्क के चक्कर में किसी पे दिल आ गया, उसके बाद नौजवान बर्बाद हो गया। याद रखिए मेरे भाई को, ये काम आप हरगिज़ मत करो और अपनी शहवत पे कंट्रोल रखो। हर चीज के लिए एक वक्त होता है। आपकी जवानी आप अल्लाह की अमानत, उसकी हिफाजत करो। जरा याद कीजिए वो गार के 3 लोग गार में जाके पनाह लिए और गार के मुंह की चट्टान ने बंद कर दिया है। उसमें से एक ने क्या किया, आए अल्लाह, मेरी एक चचा की बेटी थी, मैं उनको मोहब्बत करता था, चाहता था, मगर गलत काम की थी, मैं उसको 12 प्रपोज किया, वो तैयार नहीं हुई। मेरी नौजवान बहनें और भाई दोनों सुने, एक बार मजबूर होकर मेरे पास आ गई और मैं उसको कहा कि पैसा तो दूंगा मगर मेरे लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। राजी हो गई, मजबूर की मारी हुई। जब उसके बाद में उसके दोनों पैर के दरमियान बैठ गया, रोने लगी, कपकपाने थर्राने लगी और कहा अल्लाह से डर जा और ना जा इस तरीके से काम मत कर। मैं डर गया। क्या नौजवान मेरी बहनें याद रखो, क्या वो तकवे का नारा था, इत्तक़िल्लाह, उस नौजवान की हालत से जो है तौबा करने पर मजबूर किया है। और आज बात यह है कि लड़कियां आगे बढ़ के ये काम कर रही है, आगे बढ़ के जा रही है। मेरे नौजवान लड़कियां याद रखो, आप हिफाजत करो, माँ बाप की नाक कटवा के उनकी इज्जत को मिलिया मैट करके मत जाओ। बूढ़े माँ बाप आपके हाथ पकड़ के फरियाद करते हैं, बेटी इज्जत की लाज रख ले, मत जा, नहीं वहां शादी मुझे वही करना है। और फोटो सब रजिस्टर ऑफिस में 1 महीने 1.5 महीने तक लगी रहती है। क्या गुजरेगा वो माँ बाप जिसने आपको जन्म दिया है, पेट में रखा है, खून पसीना बहा के एक किया है। आज तुम उन्हीं माँ बाप को नाराज करके जा रही हो। वली के बगैर निकाह नहीं होता है, हराम है। याद रखिए मेरे भाइयों, आखिरी बातें हैं कि बेहयाई और बेहिजाबी का ये जो फितना है, सुभान अल्लाह, वो सही मुस्लिम बुखारी की रिवायत है। एक खातून काली कलोटी और उनको मिर्गी की बीमारी है, फिट्स की बीमारी, नबी के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल दुआ कर दीजिए कि मैं शिफा याब हो जाऊं। नबी ने कहा तुम चाहो तो मैं दुआ कर दूं, अगर तुम सब्र करो तुम्हारे लिए जन्नत है। अच्छा जन्नत है, मैं सब्र कर लूंगी, मेरे लिए अगर जन्नत है तो इतनी दूर दरखास्त है, आप दुआ कर दीजिए, मैं जब बेहोश होकर गिर जाऊं मेरे सतर खुलने ना पाए। अल्लाह अकबर। मेरे नौजवान लड़कियां, माँ और बहनें, एक काली कलोटी औरत और साथ साथ बेहोशी के आलम में भी सतर पोशी कितना ख्याल रख रही है। आप कहाँ हो? हया नहीं है, हया नहीं है जमाने की आंख में बाकी। खुदा करे जवानी तेरी रहे बेदाग। और आखिरी बात, मुनशियात, ये नफसानी ख्वाहिशात में ना नशा और नशा का फितना, आज मनशियात के ताल्लुक से भी बात होनी चाहिए थी, लेकिन माजरत के साथ मैंने मौजू जो सारी बातें आपके सामने रखनी चाहिए थी नहीं रख सका। अल्लाह ताला आपको सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला के सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।